Thank you so much. Very good afternoon to all of you who are present here. Sri Raghavendra ji, Sri Nigam ji, Dr. Rao, and all other colleagues. At the outset, I wish all of you a very happy Constitution Day. Since it is little delayed because I have other program, so I'll be brief. Uh, in my speech. आज हम लोग जो संविधान दिन मना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को. If we look at the preamble, rather we read the preamble that as it says, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and an opportunity, and to promote amongst them all fraternity and assuring the dignity of individuals and unity and integrity of the nation. In our Constitution, Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact, and give this Constitution to ourselves. That is what the preamble says. That is what the preamble is all about. आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने प्रीएम्बल का रीडिंग तो पहले ही कर लिया है, फिर से मैं क्यों दोहरा रहा हूं? मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि उसका रिलेवेंस है, जो टॉपिक है अभी आज मुझे बोलने के लिए दिया हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर. Till 1976, there were no such chapter on fundamental duties incorporated in the Constitution. 1976 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर ही नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज ही नहीं थी. तो इसलिए सबसे पहला सवाल यह है कि क्या इसका मतलब हमारे कोई दायित्व थे ही नहीं, हमारी कोई ड्यूटीज थे ही नहीं, हमारे कोई कर्तव्य थे ही नहीं? क्या ऐसा नहीं है? तभी भी थे, लेकिन वो हमें पता नहीं होंगे, उसमें लिखे नहीं थे. It was only in 1976 by way of 42nd Constitutional Amendment Act, Chapter 4A came to be added in the Constitution of India, and wherein there are initially Article 51 capital A. There were initially 10 duties. We used to call them as 10 commandments, and subsequently then in 2002, by virtue of the 86th Constitutional Amendment Act, the 11th came to be added in relation to education. अब उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो यदि हम देखें तो उसमें है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट टू द नेशनल इंस्टीट्यूशंस, आइडियल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, ऐसी कई सारी चीजें हैं. लेकिन आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू द टॉपिक बिकॉज इट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड पर्टिकुलरली इन कोविड पीरियड. Dear friends, when we read the preamble, usually we emphasize upon, हम ज्यादातर उसको justice, liberty, equality, we call it as a triangle, golden triangle: justice, liberty, equality. Justice, social, economic, political; liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship; and equality of status and opportunity. इसके ऊपर हम ज्यादा emphasize करते हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. Usually we tend to forget either or neglect the subsequent part, that is notion of fraternity. Fraternity मतलब क्या है, उसका मायने क्या है, उसका मतलब क्या है? Fraternity is nothing but the common brotherhood, जिसे हम भाईचारा कहते हैं, बहनचारा कहते हैं, वो fraternity है. What it says, fraternity, promoting amongst them all fraternity and assuring the dignity of individuals. हम ये दोनों चीजों को साथ में जोड़कर यदि देखें, fraternity and assuring the dignity of individual. So unless there is a fraternity, the dignity of individuals cannot be assured. Unless the dignity of individuals is assured, the fraternity cannot be there. So it is interdependent, I would say. ये एक दूसरे के ऊपर आधारित है. ये तो हो गई प्रीएम्बल की बात. अब आप सोचेंगे कि इसका फंडामेंटल ड्यूटीज से क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुकात है. हम पूरी यदि फंडामेंटल ड्यूटीज यदि देखते हैं तो उसमें आर्टिकल 51A स्मॉल ई, जिस आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है उसमें स्मॉल ई, उसमें ये प्रावधान है
उसमें ये प्रोविजन है, व्हाट आर्टिकल 51A स्मॉल ई सेज, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. यदि हम इस प्रावधान को देखें, आर्टिकल 51A स्मॉल ई को यदि देखें, तब हमारी समझ में ये आएगा कि प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो कंसेप्ट है, जो फिलॉसफी है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैटर्निटी as well as assuring the dignity of individuals, वो सिर्फ कंसेप्ट नहीं है, वो सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, लेकिन उसको फंडामेंटल ड्यूटी के तहत, मूलभूत कर्तव्य के तहत कन्वर्ट किया गया है। तो जो कंसेप्ट है, जो फिलॉसफी है, उसको फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया। एक बात ये, दूसरी चीज ये कि इसका रिलेवेंस क्या है कोविड के सिचुएशन में, पैंडेमिक के सिचुएशन में। उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ड्यूटीज है, अदरवाइज दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, हम लोग कहते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लेजिस्लेशंस है, कई सारे ऐसे कानून हैं जो बनाए गए, जिसके तहत ये फंडामेंटल ड्यूटीज इंपोज की गई है। फॉर एग्जांपल, एनवायरमेंट के बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपने सुना होगा, वो एब्यूज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वो है। सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन एक्ट आपने सुना होगा, वो भी ड्यूटी है। इसका माने ये, भले ही otherwise those duties were not enforceable in the court of law, however by virtue of certain legislation, जो कानून बनाए गए, वो कानून के तहत ये ड्यूटीज इंपोज की गई है, और उसके थ्रू इस ड्यूटीज को एनफोर्स किया जा सकता। दूसरी चीज मैं जो कह रहा था कि कोविड के सिचुएशन में, पैंडेमिक के सिचुएशन में इसका मायने क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यदि हम देखें, the notion of common brotherhood, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities. क्या हमने पैंडेमिक से कुछ सीखा है? क्या पैंडेमिक से हमने सीखने की कोई कोशिश की है? यदि कोई मैसेज है पैंडेमिक का, कोविड-19 का, तो वो ये है कि आप कौन से रिलीजन के हो, कौन से रीजन के हो, कौन से कास्ट के हो, आपका जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर इमटेरियल, इररिलेवेंट। कोविड ने किसी को छोड़ा नहीं, वो कौन से कास्ट का है, वो कौन से रिलीजन का है, कौन से रीजन का है, वो लेडी है, जेंट्स है, किसी को छोड़ा नहीं। इसका माने ये है, इसका मतलब ये है कि जो नोशन ऑफ कॉमन ब्रदरहुड विच इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, भाईचारा जो है, वो भाईचारे का हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है, वो हमने पैंडेमिक में निभानी चाहिए, और निभाई कई लोगों ने। वो कौन से क्लास का है, कौन से कास्ट का है, कौन से धर्म का है, इसको किसी ने देखा नहीं, ना देखने की कोई जरूरत है। और वही चीज ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है। और भले ही उसके लिए कोई न्यायालय में, कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अल्टीमेटली दो देयर इज नो जुडिशियल रेमेडी अदरवाइज, बट इट इज आवर ओन कॉन्शियंस, and that conscience is to be made operational, that conscience is to be enlightened। हमारा जो हमारे जो सत विवेक बुद्धि है, उसको हमने इस्तेमाल करना चाहिए। हमने ये सोचना चाहिए कि ऑल ऑफ अस आर सेम, ऑल ऑफ अस आर इक्वल, हम सभी लोग मानव हैं, सभी लोग इस भारत के निवासी हैं, सभी लोग इस भारत के नागरिक हैं। जब हम आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमल में लाया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, जब हम मोर इंपोर्टेंटली 75 इयर्स हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने ये भी सोचना चाहिए कि हमें ब्रिटिशर से तो आजादी मिल गई, फॉरेनर से तो आजादी मिल गई,
लेकिन क्या रियल आजादी जो है, हमारी जो जेलसीज है, हमारे जो डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे जो वायलेंस है, करप्शन है, इन सब चीजों से क्या हमें आजादी मिली? हम आजादी का अमृत महोत्सव कब मना पाएंगे, कब मनाएंगे, कब मना सकते हैं? वो जो अमृत है आजादी का, जो इलिक्सिर है, दैट इलिक्सिर वी वांट टू टेस्ट. We want to test that elixir of peace. We want to test that elixir of equality. We want to test elixir of justice. We want to test the elixir of progress without any discrimination, without any diversities. Diversities तो है, लेकिन diversities को हमने ध्यान में नहीं रखना है, एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे से व्यवहार करते हुए. और वही फंडामेंटल ड्यूटीज है. ऑलवेज वी आर ऑब्सेस्ड विथ आवर फंडामेंटल राइट्स, for which we can go to the court of law for their enforcement. We never think about duties which are also fundamental. That's why on this day I will call upon all of you, including myself, that we must give a serious thought about these duties. What are my duties? And do we discharge? Do I discharge my duties? Only then it will be real Azadi Ka Amrit Mahotsav. The real elixir of freedom would be tested only then when there will be equality, there will be similarity, there will be justice, there will be liberty, and when each one of us will treat each other with equal respect and equal dignity. With this, I conclude. I thank you so much.